Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss the concepts related to hybridization और किस तरह से hybridization को we can associate with the Vespert theory, valence shell electron pair repulsion theory से कैसे relate किया जा सकता है और dipole moment क्या होता है and how can we identify the nature of the molecule, either it is polar molecule or non-polar molecule, or we'll discuss some of the past paper questions or practice question in this video. So let's move to the light board to cover these topics. In this video, we are going to discuss hybridization and the dipole moment. And I'm going to relate these topics with the Vespert theory which we discussed in the previous video. Valence shell electron pair repulsion theory में भी मैंने hybridization sp2, sp3 और sp molecules को relate करवाया था along with their geometry कि कौन कौन सी geometry, कौन कौन सी shapes होएगी sp2 की और sp3 की और sp hybridized orbitals की. So starting from the hybridization, after that we'll discuss some of the past paper questions or practice question for the dipole moment as well. So hybridization होती क्या है? Starting from this thing, beta, we have different orbitals. Different orbitals की different energy भी होती है. They could have different shape. बेटा shape different है, energy different है, shape same भी हो सकती है, but energy would be different. तो बेटा different energies वाले orbitals जब intermix होते हैं, so they will give you the new orbitals which have सेम शेप और सेम एनर्जी. ये पॉइंट याद रखना है आपने कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होएगी सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं एट द एंड, दे विल हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप. फॉर एग्जांपल वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, 1s ऑर्बिटल जो कि होता है स्फेरिकल इन शेप एंड 3p ऑर्बिटल्स. p ऑर्बिटल्स are having dumbbell shape. तो बेटा जब ये mix होते हैं they will intermix together, so it will form 4 new orbitals. 4 new hybridized orbitals बनेंगे. hybridized orbitals क्यों कह रहा हूं, because they would have same shape and same energy. इनकी shape क्या होती है बेटा, one small lobe with a bigger lobe, one small lobe with a bigger lobe, one small lobe with a bigger lobe. सो इस तरह के 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. sp2 में क्या होएगा, 1s and 2p orbitals will mix together and it will form 3 new orbitals. तो 3 यानी कि आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे with same shape and same energy. sp में we will have 1s and 1p ऑर्बिटल, ये मिक्स होंगे और 2 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे with same shape and same energy like this. Got it? तो बेटा यहीं से हमने रिलेट करवाया था with s करेक्टर परसेंटेज. s करेक्टर किस में सबसे ज्यादा होएगा, किस में सबसे कम होएगा. We have 1s और 3p. तो 25% it has s करेक्टर and 75% it has p करेक्टर. 1:3 है ना, तो बेटा 1:3 से ही आप यहां से परसेंटेज भी इसके निकाल सकते हो. 1:2 है, एक s है, 2 p है, सो 33.33% s होएगा, 66.66% it has p character. In this way we can also calculate the percentage character of s in sp जो कि 50% होएगा और 50% ही p होएगा. जितना ज्यादा s करेक्टर होएगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी. Percentage of s is directly proportional to electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होएगी. Percentage of s is directly proportional to bond energy, inversely proportional to bond length. ये तमाम पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, परसेंटेज एस करेक्टर किस तरह से बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेट करता है, सो आप प्रीवियस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं.
सो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 109.5 डिग्री का. इट वुड हैव टेट्राहीड्रल शेप. इसके अलावा ये याद रखना है, ये हमेशा जब भी सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव अल्कीन, तो बेटा जब सिंगल बॉन्ड होएगा सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स अल्केन्स में. वी विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होएगी? व्हेन वी विल हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो इसकी शेप क्या होएगी? इट वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. एंड द एंगल वुड बी 120 डिग्री का. ठीक है. इन sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा अल्काइंस होंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एंड द शेप इज लीनियर. ज्योमेट्री जो होएगी इसकी लीनियर होएगी और 180 डिग्री का एंगल होएगा. सो दिस इज sp, sp2 और sp3. सो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. बेटा CH4 कंपाउंड है आपके पास और यहां पे आपने बताना है कार्बन और हाइड्रोजन की ज्योमेट्री क्या होएगी, इस बॉन्ड की ज्योमेट्री क्या होएगी. बेटा सिंगल बॉन्ड है एंड वी डिस्कस कि सिंगल बॉन्ड जब होएगा तो बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होएगी? इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो बेटा एंगल क्या होएगा? इट मस्ट बी 109.5 डिग्री. अगर कोई लॉन पेयर होएगा तो एंगल रिड्यूस हो जाता है 109 से, इट कम्स ओवर 107. और अगर एक और लॉन पेयर होएगा, इट आई मीन इफ a compound is having or atom is having two lone pairs, तो in that case further reduce हो जाएगा 104 तक आ जाता है. just in the case of H2O जिस तरह आपने कल examples में discuss किया था, due to the presence of lone pair the angle reduces. C2H6 बेटा this is ethane. so again यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल क्या होएगा और इसकी ज्योमेट्री क्या होएगी? इट इज अगेन टेट्राहीड्रल. सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करनी है आपने. ठीक है. नो मैटर आपके पास मीथेन का हो, इथेन का हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जब सिंगल बॉन्ड्स की बात की जा रही है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्टक करना है आपने. ठीक है. सो एंगल क्या होएगा? 109.5 डिग्री का. C3H6 दिस इज एल्कीन्स मेंबर. जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है. सो एल्कीन है. यहां पे पूछा जा रहा है कि कार्बन और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होएगी? बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जब भी आ जाएगा तो क्या होएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी. गॉट इट? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल वुड बी 120. इट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप. C4H6 बेटा अगर डबल से दो कम हाइड्रोजन है तो दैट इज अल्काइन. तो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन एंड एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की. तो इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होएगी? सो बेटा इट मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. ठीक है. sp हाइब्रिडाइजेशन होएगी इसमें और एंगल वुड बी 180 डिग्री का. तो इनमें अगर 180 डिग्री है तो ज्योमेट्री क्या होएगी? दैट इज लीनियर. इट इज लीनियर इन शेप. ठीक है. दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन. दिस इज डाइमिथाइल कीटोन और यू कैन से इट इज प्रोपानॉन. ठीक है. दोनों नेम्स इसके कॉमन नेम भी आपको बताया और IUPAC नेम भी डिस्कस किया. दिस इज प्रोपानॉन और एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस वन. कार्बन ऑक्सीजन इज हैविंग डबल बॉन्ड. तो बेटा यहां पे एंगल क्या होएगा? एंगल इज 120 अगेन बिकॉज बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में वी हैव अ डबल बॉन्ड.
डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्टक विद दिस पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट इज प्लेनर इन शेप, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होएगी। अगर आपसे कहा जाता है HCN मॉलिक्यूल है और C और N के दरमियान में जो कार्बन है C और N, कार्बन इज हैविंग विच हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगेन क्वेश्चन बता रहा हूं, HCN मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन विद नाइट्रोजन क्या होएगी, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन, हाइब्रिडाइजेशन बताएं और उसका एंगल बताएं, ठीक है। सो आफ्टर दैट आई विल गिव यू द फीडबैक कि आंसर क्या होना चाहिए था करेक्ट, ठीक है। सो होप सो यू कैन रिलेट द वेस्पर थ्योरीज कॉन्सेप्ट, और अगर क्योंकि ये तमाम एंगल्स और ये तमाम जियोमेट्रीज, ये तमाम शेप्स हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी, वी कैन रिलेट दैट टॉपिक विद हाइब्रिडाइजेशन एज वेल, गॉट इट। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट, कम टू दिस पॉइंट नाउ। डायपोल मोमेंट बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ Q into R. Q is the charge और R क्या हुआ, दो चार्ज के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है। सो बेटा Q into R and this is a vector quantity. It is important point. It is a vector quantity. It has magnitude and it also has a direction, ठीक है। यानी कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पे डिपेंड करेगी एक्चुअल जो डायपोल मोमेंट होएगा। सो बेटा एक चीज याद रखो, इफ द डायपोल मोमेंट इज जीरो, दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल, ठीक है। जिस कंपाउंड का ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो होएगा, मॉलिक्यूल इज हैविंग डायपोल मोमेंट जीरो, तो दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डजेंट मैटर कि वो होमो एटॉमिक है या हेट्रो एटॉमिक है, इफ द डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट इज पोलर। Remember we discussed polar compounds, polar covalent compounds and non-polar covalent compounds. तो बेटा second concept dipole moment का आता है। So dipole moment अगर zero है तो that compound is non-polar, और if the dipole moment is not equals to zero, it has some value, तो that is polar in nature. और dipole moment की value बेटा we have two units, mc and that is meter coulomb, because charge है, charge का unit क्या होता है बेटा, coulomb होता है, ठीक है। So this is coulomb and distance is measured in the meter. So meter coulomb, that is also known as dBi. So 1 dBi is another unit, mc is another unit, so SI unit है ये आपके पास। And what is the relationship in between dBi and mc, meter coulomb, और dBi में क्या relationship है? Please remember this value. 1 dBi is equals to 3.36 into 10 raised to the power minus 30 meter coulomb. So this is the relationship in between these two units, meter coulomb and dBi. So hope so ये key concept समझ आ गया होगा। This one. Now I'll try to relate this topic with the geometry, और geometry कहाँ पे डिस्कस की, वेस्पर थ्योरी में। It means वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, geometries को यूज करते हुए, we can also find out the dipole moments of the compounds. So बेटा geometry of molecules and dipole
मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। बेटा रिमेंबर दिस पॉइंट के इफ यू हैव सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होएगा इफ इट इज नॉट हैविंग एनी लॉन पेयर, जहां पे लॉन पेयर जीरो होए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जहां पे कोई लॉन पेयर ना हो, नो लॉन पेयर। तो ऐसा मॉलिक्यूल आपने वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किया था। वी हैव AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। जितने भी 2-0 वाली फॉर्मेशन है, AB3 टाइप में वी हैव 3-0, AB4 टाइप में वी हैव 4-0 वाले मॉलिक्यूल्स, AB5 टाइप में वी हैव 5-0 वाले मॉलिक्यूल्स, AB6 टाइप में वी हैव 6-0 वाले मॉलिक्यूल्स। बेटा ये तमाम मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जीरो होएगा। इन तमाम का डायपोल मोमेंट जीरो होएगा इफ we have same atoms with the central atom. We have same atoms surrounded by the central atom. ये तो फिक्स होएगा हमेशा ही, इसमें देयर इज नो एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव CO2 that is AB2 type molecule, you have BF3 that is AB3 type molecule, CH4 that is AB4 type molecule, you have PCl5 that is AB5 type molecule, you have tellurium fluoride that is AB6 type molecule। बेटा ये तमाम के तमाम molecules क्या होंगे, they have zero dipole moment, so it means they are non-polar। और बेटा अगर ये non-polar है तो इनका boiling point क्या होएगा, लो होएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। सो हमेशा बेटा टॉपिक को रिलेशंस वाइज अंडरस्टैंड किया करो, रिलेट करवाया करो टॉपिक, और केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। अदरवाइज केमिस्ट्री के रिलेशंस अगर नहीं आप ड्राइव करते और मैकेनिज्म अपने माइंड में क्लियर नहीं करते तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे वी हैव अदर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल CCl4, चारों एटम्स एक जैसे हैं तो बेटा इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होएगा। BF3 की जगह पे यू कैन मेंशन BCl3, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और यू कैन मेंशन एनी अदर कंपाउंड HgCl2, इट हैज जीरो डायपोल मोमेंट लाइक दिस। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जिनमें देयर इज नो लोन पेयर एंड दे हैव सेम एटम्स, दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं, सेम एटम्स, नो लोन पेयर, सेम एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो बेटा उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, दे वुड हैव जीरो डायपोल मोमेंट, इट मीन्स दे आर नॉन पोलर। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब कुछ रिलेशनशिप हम डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डिस्कस करते हैं। इफ यू हैव HCl और
you have HBr, you have HI. Beta, remember this point कि dipole moment is directly proportional to electronegativity. Dipole moment is directly proportional to electronegativity. And again, the dipole moment is directly proportional to boiling point. And dipole moment is directly proportional to polarity. Although यही तमाम पॉइंट्स हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्कस किए हैं अभी यहाँ पे. सो HCl और HBr और HI में से व्हाट डू यू थिंक किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होएगा? बेटा डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होएगा? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी. वी हैव क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा होएगा. सो दैट्स व्हाई इट्स डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर. सो HCl हैज greater dipole moment out of these three. Clear? So this is our next question. यहाँ पे aromatic compounds को आप कुछ discuss करते हैं कि how aromatic compounds are used in the dipole moment, कि किस compound का dipole moment zero होएगा और किस compound का dipole moment zero नहीं होएगा. बेटा we have CH3 benzene के साथ, that is called as toluene. अगर बेंजीन की बात करें, रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये आपके एफएससी कंटेंट में ये क्वेश्चन भी होता है और ए लेवल्स में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है कि व्हाई बेंजीन इज नॉन पोलर, बिकॉज इट्स डायपोल मोमेंट इज जीरो. जो बेंजीन है इट हैज जीरो डायपोल मोमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर. रीजन क्या है? We have carbon on this side, 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 and we have carbon on this side. बेटा जितने भी कार्बन्स होते हैं, कार्बन कार्बन का जितने भी बॉन्ड्स अटैच हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं, हर एक का अफेक्ट कैंसिल हो जाता है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो C और H का वेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. जो इधर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल हो जाएगा. जो इधर प्रोड्यूस हो रहा है वो इधर कैंसिल हो जाएगा. सो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वी हैव सेम एटम्स ऑन ऑल साइड्स, तो बेटा वो जीरो डायपोल मोमेंट शो कर देते हैं. सेम इज हैपनिंग इन AB3 टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स और AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स में यही सब कुछ होता है. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट. सो अगर कोई एटम चेंज हो गया, देखो यहां पे नाउ वी हैव C एंड C के दरमियान में बॉन्ड, नॉट विद H. दिस कार्बन इज हैविंग 1H, this carbon is having 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 1H. Although इधर का डायपोल मोमेंट इधर के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो सकता है, इधर का डायपोल मोमेंट इधर के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो सकता है, बट वी कैन नॉट कैंसिल द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस वन with this hydrogen. So it has some sort of dipole moment. ठीक है? We have two chlorine atoms. This is ortho position, this is meta position, and this is para position. बेटा now observe over here कि यहाँ का dipole moment is cancelled by this. This dipole moment is cancelled by this. This CCl's dipole moment is cancelled by this CCl's dipole moment. So बेटा सारे तो dipole moment cancel हो गए. So it has zero dipole moment. सबसे कम यहाँ पे आपके पास आ गया. It has some dipole moment. So this Cl and this Cl, we cannot cancel the dipole moments of these two species. This hydrogen, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, we can cancel this effect,
but we cannot cancel this one with this one, this one with this one. So it has some sort of dipole moment. But remember, यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डायपोल मोमेंट है, that is less than carbon and Cl bond. We have carbon and carbon bond on this side. यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में है. But over here we have carbon and Cl bond. कार्बन और Cl में we have more electronegativity. So ज्यादा electronegativity की होने की वजह से the dipole moment of this molecule is greater than toluene. This is 1,2-dichlorobenzene. ठीक है. So 1,2-dichlorobenzene में what is happening? CCl का बॉन्ड आ जाता है. Over here we have CC बॉन्ड जो टोलीन के साथ बन रहा है. टोलीन के मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनता है. So less electronegative होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट is less than this one. This is meta position. This is meta position and this is ortho position. So बेटा ऑर्थो और मेटा में से प्लीज रिमेंबर, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपने पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ए लेवल्स में, और इसी तरह से एफएससी पार्ट 2 में भी आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. तो बेटा जो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होएगा. सो दिस इज मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन का डायपोल मोमेंट कम होता है. तो वी कंक्लूड दिस थिंग ओवर हियर कि सबसे कम किसका होएगा? फोर्थ का सबसे कम होएगा. फोर्थ से ज़्यादा किसका होएगा? फर्स्ट वाले का. फर्स्ट वाले से ज़्यादा किसका होएगा? ऑर्थो का या मेटा का? मेटा का. सो 3 सबसे ज़्यादा होएगा जी ऑर्थो पोजीशन का. ऑर्थो में डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन मेटा और इन दोनों से कम होएगा टोलीन में. टोलीन से कम होएगा यहां पे जो पैरा पोजीशन है, पैरा 1,4 जो पोजीशन है आपके पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में वी हैव 0 डायपोल मोमेंट. सो इट इज नॉन पोलर. ये भी आप बता सकते हो नॉन पोलर है. इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है. इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज नॉन पोलर. ठीक है. होप सो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो नाउ हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज अ पोलर कंपाउंड? बेटा पोलर कंपाउंड्स क्या होंगे? जिनका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा, जिनका डायपोल मोमेंट 0 ना हो. ठीक है. CCl4 बेटा दिस इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल. कैसे पता चल रहा है? कार्बन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 4 एंड इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स. 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए और चारों बॉन्ड्स बन रहे हैं. इट इज नॉट हैविंग एनी लॉन पेयर. तो बेटा लॉन पेयर भी नहीं है, चारों बॉन्ड्स भी बन रहे हैं और हर तरफ एक जैसा एटम भी है. सो दैट इज सिमेट्रिकल. सो इसका डायपोल मोमेंट 0 है. डायपोल मोमेंट 0 जिसका होता है दैट इज नॉन पोलर. सो ये तो नहीं हो सकता. BF3 दिस इज AB3 टाइप मॉलिक्यूल. AB3 टाइप मॉलिक्यूल कैसे है पता कैसे चलेगा? बिकॉज यू कैन सी 3 बॉन्ड्स ऑफ बोरॉन एंड फ्लोरीन ओवर हियर. बोरॉन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 और 3 ही उसके बॉन्ड्स बन रहे हैं. इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड. सो देयर इज नो लॉन पेयर और हर तरफ एक जैसा ही एटम है. सेम एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम बोरॉन है यहाँ पे. तो बेटा BF3 भी आपके पास नॉन पोलर होएगा. इट हैज 0 डायपोल मोमेंट. नाउ दिस इज 1,2-dichloroethene. This is 1,2-dichloroethene. But we have to observe one thing over here कि यहाँ पे एक cis डाइक्लोरोएल्कीन है और एक तरफ ट्रांस डाइक्लोरोएल्कीन है. In this case we have cis. बेटा अगर
ये दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं तो दैट इज सिस. तो दिस इज सिस 1,2 dichloroethene and over here we have ट्रांसएल्कीन. बेटा ट्रांस डाइक्लोरोएल्कीन में क्या होएगा, अगर दोनों डायगोनल्स आपके पास यहां पे सेम एटम्स के हैं, सेम ग्रुप के हैं, सो बेटा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस. सो दिस कंपाउंड इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन. तो बेटा यहां पे दो C और Cl का जो डायपोल मूवमेंट है, वी कैन कैंसिल दैट डायपोल मूवमेंट विद दिस CCl बॉन्ड. और ये जो CH बॉन्ड है, इट्स डायपोल मूवमेंट कैन बी कैंसल्ड आउट बाय दिस CH बॉन्ड. इसका जो डायपोल मूवमेंट होएगा, वी कैन कैंसल आउट द डायपोल मूवमेंट्स ऑफ दीज टू बॉन्ड्स. तो बेटा अगर डायपोल मूवमेंट्स कैंसल आउट हो जाते हैं, सो इट मीन्स इट बिकम्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट्स डायपोल मूवमेंट बिकम्स जीरो. तो बेटा डायपोल मूवमेंट जीरो होएगा तो नॉन पोलर हो जाएगा. सो इट मीन्स ट्रांस एल्कीन्स या ट्रांस डाइक्लोरोएल्कीन्स जब भी आ जाएंगे, उनका डायपोल मूवमेंट इज लेस देन सिस एल्कीन्स. सो नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपने कि जो डायपोल मूवमेंट है ऑफ सिस दैट इज ग्रेटर देन द ट्रांस. ट्रांस का डायपोल मूवमेंट दैट इज जीरो. So it means that is non-polar. It means it has low melting and boiling point. तो बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, if you have cis alkene and trans alkene, which one has greater boiling point? तो बेटा relate that concept with the dipole moment. Dipole moment से you can identify the bond polarity, boiling point and polarity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट. सो तमाम टॉपिक्स इंटरलिंक कर जाते हैं. सिस एल्कीन्स और ट्रांस एल्कीन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर अप हो जाता है. सो नाउ टेल मी बेटा, ये जो CH4 कंपाउंड है, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में अभी कंपाउंड्स को डिस्कस किया, CH4 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होएगा? इट हैज जीरो डायपोल मोमेंट. रीजन क्या है? Because it is AB4 type molecule. AB4 type molecule में it is making 4 bonds, but it is not having any lone pair. अगर CCl4 compound की बात करूं तो CCl4 compound में again that is having 0 lone pair और तमाम एक जैसे ही atoms है. What if we have different atoms? For example, आपके पास आ जाता है CHCl3. बेटा जैसे ही आपने एक एटम इसमें चेंज कर दिया, नाउ इट इज नॉट हैविंग अ जीरो डायपोल मोमेंट. रीजन क्या है बेटा? Cl और Cl, Cl बॉन्ड, Cl बॉन्ड एक तो कैंसिल कर दोगे, एक तरफ तो CH और एक तरफ Cl बचेगा. वी कैन नॉट कैंसिल द डायपोल मोमेंट ऑफ दीज टू बॉन्ड्स. सो इट्स डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, इट इज पोलर मॉलिक्यूल. CHCl3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल. और अगर CH2Cl2 कहा जाता तो बेटा दैट इज अगेन पोलर मॉलिक्यूल, वहां पे भी कैंसलेशन ना हो सकती. CH3Cl दैट इज अगेन पोलर मॉलिक्यूल, तो वहां पे भी कैंसलेशन ना हो सकती. CCl4 में और CH4 में we can cancel out all the dipole moments and the molecule will become non-polar, zero dipole moment होने की वजह से. So let's conclude this topic. So जो questions अभी इस वीडियो में मैंने आपसे पूछे हैं, you must have to mention the answers in the comment box so that आपकी queries अगर हैं या आपकी further उसमें कोई confusion रह जाती है, I can answer
योर क्वेरीज और जो भी इश्यूज होंगे आफ्टर चेकिंग योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो होप सो ये टॉपिक अब कवर अप हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, होप सो यू हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स और क्वेश्चंस और उनकी टेक्निक समझ आई होंगी आपको. And if you have further queries regarding this topic or any topic from the chemical bonding, do let us know in your comment box so that we can give you the feedback और उनके relevantly कोई questions further discuss किए जाएं. Although I am going to discuss some of the practice questions and the past paper questions in the next video, so stay tuned with us for the upcoming topics. Thank you very much.